Hello everyone, good morning all. We will continue chapter 1 of class 8. The Anglo-Maratha Wars, यानी अंग्रेज और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। Mumbai was the western India center of the British trade, but the surrounding area was under the control of Marathas, due to which the British were not able to stabilize their control after Mysore. The Marathas were the only power left to challenge the British authority. The British were trying to interfere in the internal affairs of the Marathas. Unfortunately, in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' power was crushed by Abdali after the death of able Maratha ruler Madhav Rao. Raghunath Rao, the uncle of the minor ruler, staked his claim for the throne. Nana Fadnavis, another Maratha Sardar, the Bhosle, the Gaikwad, Sindhia and the Holkar did not support him. Raghunath Rao entered into a treaty with the British and got their support. In this way, the British got a chance to interfere in the internal affairs of the Marathas. In 1775, the first Anglo-Maratha War was fought. This war remained indecisive as all the Marathas' power fought untidily and for nearly 20 years peace has maintained. यानी कि जो मुंबई में अंग्रेज़ों के पश्चिम भारतीय व्यापार का केंद्र था, यानी मुंबई जो था उनके व्यापार का आकर्षक केंद्र था, किंतु उसके आसपास के प्रदेश पर मराठों की सत्ता थी। इस कारण से अंग्रेज वहां अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। तो मैसूर के पश्चात केवल मराठों की सत्ता अंग्रेज़ों के लिए एकमात्र चुनौती थी। अंग्रेज जो थे वो मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से सन 1761 में 1761 में अब्दाली के हाथों पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने पर, मतलब जो 1761 में जो अब्दाली के हाथों जो पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें जो मराठों की स्थिति कुछ दुर्बल हो गई थी। इसी समय जो योग्य पेशवा जो थे माधव राव की मृत्यु हो जाने के कारण अल्पवयीन उत्तराधिकारी के विरुद्ध उसके जो चाचा थे रघुनाथ राव ने पेशवा का पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। तो रघुनाथ ने अंग्रेज़ों से एक संधि की करके उसने मराठों से सहायता ली। इस प्रकार से मराठों के मामले में अंग्रेज़ों को प्रवेश करने का अवसर मिल गया। 1775 में अंग्रेज मराठों के बीच पहला युद्ध हुआ। अब था द सेकेंड एंग्लो मराठा वार was fought during the reign of Lord Wellesley, when the contemporary Maratha ruler Bajirao Peshwa II had already signed a pact with the British. In order to acquire the help of the British, he had accepted all the terms of treaty. The powerful Maratha chief, the Bhosle and the Sindhia, declared war against the British in 1803 to maintain their independence. Both of them were defeated and were left with no other alternative but to enter into separate treaties with the British. In the beginning, the Holkar remained aloof, but soon they also fought against the British to maintain their independence. The ruler of Bharatpur, Rajasthan, helped him. Although the British forces was able to defeat the Holkar, they were unable to defeat Bharatpur and ultimately signed a pact with the ruler of Bharatpur. यानी कि लॉर्ड वेलेजी के समय दूसरा जो मराठा युद्ध था वो लॉर्ड वेलेजी के समय लड़ा गया। तब जब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले में पेशवा ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। तो जो मराठा सरदार भोंसले सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध सन 1830 में युद्ध छिड़ दिया। महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेज़ों के सामने भी टिक ना सके।
दोनों सरदारों को अंग्रेज़ों से अलग अलग संधियाँ करनी पड़ी। तो इस तरह ये सेकेंड वॉर हुआ। अब है थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार, यानी कि जो तीसरा मराठा वार था वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। जैसे ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय लड़ा गया था, इसी तरह जो तीसरा मराठा युद्ध था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817 से 1818 तक लड़ा गया। द पेशवा had already signed subsidiary alliances with the British, but in 1870 the British residents start putting pressure on the Peshwa to sign a new subsidiary alliance and to relinquish his position as the leader of Marathas Federation. The Peshwa Bajirao II, and angered by the continuous interference by the British, declared war on them. The Bhosle and Holkar also declared war against the British. The British defeated the Holkar, the Bhosle and the Peshwa separate war. यानी कि 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये युद्ध हुआ। पेशवा जो थे वो पूर्व में ही अंग्रेज़ों के सहायक संधि को स्वीकार कर चुके थे, किंतु 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस पर एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। साथ ही में पेशवा को बाध्य भी किया गया कि वह मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दें। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के निरंतर जो हस्तक्षेप, यानी जो बीच बीच में वो हस्तक्षेप करते थे उनकी निजी चीज़ों में, तो उससे वो जो थे काफ़ी नाराज़ थे, तो उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। भोसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस तरह जो तीसरा युद्ध था स्टार्ट हुआ। अब थी लॉर्ड वेलेस्ली वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, यानी जो वेलेस्ली थे उनकी सहायक संधियाँ क्या थी। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली जनरल ऑफ इंडिया इन 1798 एंड ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। He decided to bring as many Indian states as possible under British rule. He began to align Indian states with the company by war and treaty. He brought Mysore and Marathas under company control by waging war. यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 में 1798 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। वेलेस्ली का लक्ष्य था कि अधिक से अधिक अपने जो साम्राज्य था उसका वो अधिक से अधिक विस्तार कर सके। उसका उद्देश्य भारतीय जो राजे नवाबे थे उनको अपने ब्रिटिश झंडे के नीचे लाने का उद्देश्य था। तो उनका जो उसका फॉलोइंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द सबस्टेंस, यानी सहायक संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी। जो सहायक संधि हुई वेलेस्ली के साथ उसकी शर्तें क्या थी, तो उसमें निम्नलिखित बातें थी। Under the subsidiary alliances, the ruler of the Indian state was compelled to accept the permanent stationing of a British force within his territory. The ruler had to pay a fixed amount for maintenance of force or to provide territory of the state to company. The Indian ruler had to keep his court, a British officer who could observe the working of state। यानी कि ये 1, 2 और ये 3, ये 3 शर्तें थी। तीन शर्तें ये थी कि जो सहायक संधि, जो राजा सहायक संधि को अपनाएगा उसे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना को एक टुकड़ी अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। ब्रिटिश राज्य की एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखना होता था। दूसरी उनकी शर्त थी कि ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए, यानी जो संधि स्वीकार करेगा उस राजा को ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए राज्य को एक निश्चित धनराशि देनी होगी और अपने राज्य का एक भूभाग भी कंपनी को देना होगा। तो तीसरी जो शर्त थी उनकी, जो तीसरी उसमें बातें थी वो थी भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासकों के कार्य में हस्तक्षेप करेगा। तो यह व्यवस्था भारतीय राज्यों को दिस सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन स्टेट बट इन फैक्ट वॉट अ वायलेंट ऑफ देयर फेट। दिस वॉज अ वेब एज वन हु एग्रीड टू द अलायंस इट्स फेट वॉज सील्ड परमानेंटली इन ब्रिटिश प्लॉट। हैदराबाद एंड अवध वर प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट्स हु कंसीडर्ड टू सब्सिडारी अलायंस। यानी कि यह व्यवस्था भारतीय राज्यों की सुरक्षा के नाम पर की गई थी, लेकिन इसमें कोई सुरक्षा नहीं थी। ये एक तरह से अंग्रेज़ों का एक जाल सा था जिसमें भारतीयों को फंसाना था। बस जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के उसमें बुरी तरीके से फंस चुके थे।
एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, फिर उनका ब्रिटिश साम्राज्य फैला। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया 1813 में। तो 1823 तक इस पद पर रहा। उसने नेपाल से के साथ युद्ध करके उसे सुगौली की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी नीति थी कि हड़प नीति, यानी लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग इंडियन स्टेट अंडर कंपनी रूलर। ही बैंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ हेयर बाय द इंडियन किंग। व्हेन द रूलर died without a natural heir, his state was annexed to British dominions. Many states including Jhansi, Nagpur, Satara were annexed under this doctrine. In 1856, the Nawab of Awadh was accused of misgoverning his state and thus it was annexed to British rule. Almost entire Indian state since 1757 to 1857 had come under British rule. The administrative policies of the company spread discontent among Indian state and therefore the great freedom struggle of 1857 broke out. यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी की जो विला नीति थी उसकी नीति थी कि जो भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से मतलब कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने एक विला नीति का अनुसरण किया, यानी उन्होंने एक हड़प नीति बनाई, जिसमें से सबसे ज़्यादा उनकी हड़प नीति थी कि जो राजा बिना पुत्र के मर गए हैं या जिनकी कोई औलाद नहीं है तो उनकी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाएगा। और उसने दत्तक पुत्र लेने पर भी रोक लगा रखी थी, जैसे कि गोद ले लेते हैं अपन किसी को भी, तो उसने इस प्रथा पर भी रोक लगा रखी थी। तो इनमें से जो राज्य थे उसने उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। ऐसे राज्यों में जैसे झांसी है, नागपुर है, सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्य को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का भी उसने अंग बना लिया। तो 1856 में जो the administrative policy of the company spread discontent among Indian states, therefore the great freedom struggle of 1857। तो यानी कि 1775 से 1757 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत ब्रिटिश राज के अधीन आ चुका था और भारत को अपने अधीन करने के लिए कंपनी शासन के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई उन्हीं के कारण विरोध की जो चिंगारियाँ थी वो भारत में भड़की। अब देखिए, द सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश सक्सेस हुए वो क्यों हुए, उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि ब्रिटिश कंपनी की विजय में भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार थी, क्योंकि जो औरंगजेब थे, ये यू हैव डन अ फर्दर चैप्टर रीडिंग, सो मैं ओनली एक्सप्लेन करूँगी इसको। यानी ब्रिटिश कंपनी की जैसे जो ब्रिटिश थे वो क्यों सक्सेस हुए, उनको क्यों सफलता मिली भारत में? क्योंकि उनको पता था कि हमारे राज्य में वो आसानी से एक दूसरे में फूट डाल सकते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी में मतलब विजय का उनका जो कारण था, एक तो भारत की जो राजनीति और जो सामाजिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, वो भी जिम्मेदार थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का दौर प्रारंभ हुआ। भारत में जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे उनकी जो सैनिक शक्तियाँ थी वो कम हो गई। तो राजा जो थे वो विलासिता और अहंकार में डूबे रहते थे। तो उन्हें तो उन अपने पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों की चिंता थी और ना ही अपनी प्रजा के दुखों की। तो उनकी जो सेनाएं थी वो पथभ्रष्ट हो गई, मतलब और अनुशासनशील नहीं रहीं। तो भारत की जो प्रमुख सैनिक शक्तियाँ थीं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। जो नाम मात्र के मुग़ल सम्राट जो थे वो शक्तिहीन हो रहे थे, वैभवहीन हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, साधन युद्ध के थे नहीं। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलता का फ़ायदा उठाया और सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। जो ब्रिटिश कंपनी थी भारतीय राजा नवाबों की उदासीनता और प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने में मतलब उनको फ़ायदा मिल रहा था।
क्योंकि वो किसी एक राज्य को सैनिक और धन की सहायता देकर दूसरे राज्य को कमज़ोर करते थे, लालच में ले लिया करते थे दूसरे राजाओं को। आगे चलकर दोनों पर ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फूट डालो राज करो की नीति उनके लिए वरदान बन गई और अंग्रेज़ों की सफलता का कारण उनके हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेनाएं होती थी। अंग्रेज़ों के पास ना ही तो अच्छा तोपखाना था और ना ही अच्छी सेनाएं थी उनके पास। तो द पॉलिटिकल अनार्ची डिसइंटीग्रेशन वीक सेंटर विथ फ्यू कॉजेज इन इंडिया 18th सेंचुरी दिस मेड ब्रिटिश कंपनी टू कैपिटलाइज ऑन, यानी कि 18वीं शताब्दी ने भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव, केंद्र का कमज़ोर होना आदि ऐसे तथ्य जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी को सफलता प्रदान की। अंत में कहा जाए कि ब्रिटिश कंपनी को मिली सफलता उनकी योग्यता नहीं वरन भारत की राजनीतिक कमजोरियाँ थीं। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे का एक्सरसाइज हम इसमें देखेंगे हु साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो आप इसमें भर सकते हो, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है शुजा-उद-दौला। तो इसमें ये देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करने हैं। तो सेकंड है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग कंपनी डिड नॉट कम टू इंडिया, अमेरिकन। यानी कि व्यापारिक कंपनी ऐसी कौन सी जो भारत नहीं आई थी, तो वह पोर्चुगीज़ आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, लेकिन अमेरिका नहीं आए थे। वेयर वॉज द डच फैक्ट्री इन इंडिया, यानी डचों की जो फैक्ट्री बनाई गई वो कहाँ पर थी, तो जाहिर सी बात है वो पुलीगढ़ में थी। वेयर वॉज थॉमस रॉय सेंट ऑन एनवॉय इन 1650, यानी जो 1615 में सर थॉमस रॉय जो थे राजदूत बनकर कहाँ भेजा गया था उनको, तो उनको भारत भेजा गया था, इंडिया। नेक्स्ट है हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट टू कर्नाटक वॉर, डुप्लेक्स, यानी कि प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्लेक्स। बाकी का जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको इमेज द्वारा सेंड करूँगी। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, सो प्लीज़ स्टूडेंट कीप द रीडिंग दीज टॉपिक्स। आप ये रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी।